Hello to everyone and welcome back to my channel. Today I chose a very beautiful poem from 11th Standard Maharashtra State Board. It is from your second unit 2.1 and the title is Cherry Tree. Now what's actually in this poem? This poem talks about nature and its caliber. You can say this is the nature poetry. The tone of this poem is optimistic as it has depicted the struggle of cherry tree and its lust means strong desire to grow and to get transformed into a beautiful blooming tree. Before moving toward the poem, let's learn certain fact about the poet. He is रस्किन बॉन्ड. इनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें. इनका जन्म 1934 हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था. इन्होंने 100 से भी ज़्यादा कविताएं लिखी हैं, स्टोरीज, एसेज, नॉवेल्स लिखे हुए हैं. बच्चों के लिए भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैज़ आल्सो पब्लिश हिज 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी. टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स, इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड और द जॉन लेवलिन रीज मेमोरियल प्राइज से भी नवाजा गया है. दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रस्किन बॉन्ड. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द एनालिसिस ऑफ द पोम लाइन टू लाइन. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ. हो सकता है कि पोम के बीच में मैं आपको एक्सप्लेनेशन के बीच में थोड़े क्वेश्चंस पूछूं. ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं. सो डू केयरफुली अटेंड द वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट स्टैंजा. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree of my own, I said, and watered it once and went to bed and forgot. But cherries have a way of growing, though no one's caring very much or knowing. Students, poet Ruskin Bond is recalling a moment from his past memories that 8 years back he placed or planted the seeds of cherry fruit in the grass with the intention that he must have a tree of his own. He wanted his own cherry tree on which he can claim his possession. The poet watered it only once and went to his bed. It means what? He forget that he had planted the cherry seeds. He forgot to take care of it, to look after it afterward. But in the next line, what he is saying, that cherry trees have their own way of growing. Look at this beautiful line. Cherry trees have their own way of growing. It means what? This particular line suggests that the cherry tree is growing up despite all the odds, like a negligence on the part of the poet. पोइट क्या कहते हैं यहाँ पर? 8 साल पहले की एक इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, कि मेमोरी हमारे साथ या शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने चेरी सीड जो है वो बोया था, प्लांट किया हुआ था. एक ही बार पानी दिया, फिर निगलेक्ट हुआ, इग्नोर कर दिया उसे और भूल गए कि उन्होंने ऐसा कुछ चेरी का सीड प्लांट किया था. लेकिन चेरी जब उन्होंने नोटिस किया तो देखा कि चेरी ट्री का बढ़ने का अपना ही एक अलग अंदाज होता है. अब इस स्टैंजा से प्रोबेबली एक क्वेश्चन निकल सकता है. व्हाट वाज द थॉट विच प्रमोटेड द पोएट टू प्लांट द चेरी सीड्स. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टैंजा स्टूडेंट्स. And suddenly that summer, near the end of May, I found a tree had come to stay. It was very small, 5 months child, lost in the tall grass, running wild. Poet is stating that he noticed the cherry tree is growing up. And when did he notice? कब नोटिस किया कि ये चेरी ट्री बढ़ रहा है? नियर द एंड ऑफ मे. वो कौन सा महीना था जब उन्होंने नोटिस किया? इट वॉज द एंड ऑफ द मे. एंड दिस ब्यूटिफुल लाइन अगेन, अ ट्री हैड कम टू स्टे. इट मीन्स वॉट? देखो यहाँ पर ये लाइन जो है पर्सोनिफिकेशन बनती है. कभी भी पेड़ रहने के लिए नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? A tree had come to stay. What does it mean? The cherry tree is settled itself over there. Okay, it was further what he is saying, that it was small like a 5-month-old child or baby, right?
एज इट वॉज स्टिल ग्रोइंग अप, वो बढ़ रहा था, लेकिन अभी जब उन्होंने नोटिस किया वो कितना था, 5 मंथ का जो बेबी होता है उस तरीके से ये छोटा था. नेक्स्ट, goats ate the leaves, the grass cutters kite, split it apart and monsoon plight, shriveled the slender stem. Now see student, it was small like a 5-month-old child जो बोला है. It was that phase of its life when it was vulnerable to many sorts of dangers. Like in the first slide, अभी जो मैंने recent स्लाइड अभी आपको बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था, जो स्टैंजा में लिखा हुआ है कि वो ग्रो कर रहा है, बहुत सारे टॉल ग्रासेस उसके अराउंड है. इट मीन्स व्हाट, मैच्योर्ड प्लांट्स ऑलरेडी उसके आसपास हैं. तो हो सकता है कि सबसे पहला स्ट्रगल जो है एक छोटे से, एक नन्हे से प्लांट का, जैसा हमारा यहाँ पर चेरी ट्री है, उसका मुकाबला, उसका स्ट्रगल सबसे पहले उन मैच्योर्ड प्लांट से है. नंबर सेकेंड क्या बोला है, गोट्स, बकरियां होती है, वो क्या करती हैं, पत्ते खाती हैं, पेड़ों की शाखाएं खाती हैं. तो हो सकता है कि रैंडमली जब वहाँ पर बकरियां आती है ग्रास खाने के लिए, घास खाने के लिए, तो चेरी के पत्ते भी वो खा चुकी है या फिर खाती होगी, तो वो भी एक प्रकार का डेंजर है. द ग्रास कटर स्काइट, स्काइट का मतलब क्या होता है, एक रॉड होता है, एक डंडा होता है, उसके एंड पर ब्लेड लगा हुआ होता है, और वो किस काम आता है, टू कट ऑफ द ओवरग्रोन ग्रास. जो ज़्यादा घास बढ़ती है, जो ज़्यादा प्लांट बढ़ रहा है, ओवरग्रो हो रहा है, तो उसे काटने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है. तो जो ग्रास कटर्स आ रहे हैं वहाँ पर, वो क्या देखते हैं कि ये प्लांट कौन सा है, नो, रैंडमली वो अपना काम कर लेते हैं, जिसके बीच में बेचारा हमारा जो चेरी ट्री है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है. यहाँ पर मॉनसून की बात की है स्टूडेंट्स, लेकिन क्या डेंजर सिर्फ मॉनसून से होता है, नो. दिस लाइन, what does it suggest? It is suggesting that the harsh seasonal, the impact of harsh seasonal changes, जैसे इंसानी जिस्म पर सीजनल चेंजेस का असर होता है, उसी प्रकार से जानवरों में, पेड़ और पौधों में भी इसका असर दिखाई देता है. ज़्यादा बारिश हुई तो पेड़ सड़ सकता है, प्लांट सड़ सकता है, ब्लाइट यानी इंसेक्ट्स उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, फंगस आपने देखी होगी, फंगस चढ़ती है. कम बारिश हुई, अगर उस पेड़ को, उस प्लांट को उतना फूड नहीं मिला, तो इट गेट श्रिवल्ड. श्रिवल्ड का मतलब क्या है, ड्राई हो जाता है. उसकी जो स्टेम्स होती है, डंठल होती है, उसकी जो ब्रांचेस होते हैं, पत्ते होते हैं, वो क्या होते हैं, सूखने लगते हैं. सो यहाँ पर इस स्टैंजा में स्टूडेंट सवाल एक निकलता है, दैट इज व्हाट वेयर द थ्रेट्स टू द चेरी ट्री. चेरी ट्री को किन किन चीज़ों का खतरा था. व्हाट वेयर द थ्रेट्स टू द चेरी ट्री. Moving toward the next slide, next stanza. Even so, next spring, I watched 3 new shoots grow. The young tree struggle upward, thrust its arm in a fresh, fierce lust. Spring यानी जो वसंत का ऋतु होता है, shoots यानी जो नए नए अंकुर उस पेड़ को या उस पौधे को आते हैं. देन स्ट्रगल का मतलब है संघर्ष, ट्रस्ट का मतलब है टू फोर्स, टू पुश समथिंग विथ फोर्स. आर्म्स यानी यहाँ पर जो बाहें हैं, भुजाएं हैं, पेड़ों की भुजाएं क्या होती है, उसके ब्रांचेस, उसकी शाखाएं, उसकी टहनियाँ. फियर्स का मतलब है एग्रेसिव, एंड लस्ट का यहाँ पर मतलब है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. अब देखते हैं इसका एनालिसिस, इसका एक्सप्लेनेशन. Now see, despite of having this odd student and dangers in the form of goats, grass cutters, scythe, harsh seasonal changes, blights, insect, fungus, etc., the cherry tree has a strong desire to grow more and more. उसे बढ़ना है, और भी बढ़ना है. It is struggling to reach to the sky with its wide open आर्म्स. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि आर्म्स क्या होते हैं, किसी भी पेड़ के आर्म्स यानी उसकी बाहें क्या है, वो बाहें अपनी आकाश की तरफ, आसमान की तरफ फैलाता है. मतलब क्या, वो ऊपर की और बहुत टॉल बढ़ना चाहता है. द चेरी ट्री इज सो फियर्स मीन्स वॉट, एग्रेसिव. दैट इट हैज़ लस्ट मीन्स वॉट, a strong desire that it should grow more and more and expand its root under the ground and wants to touch the sky. अब किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए
क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जैसे इंसानी जिस्म जब बढ़ता है, ग्रोथ होती है हमारे जिस्म की, हमारे शरीर की, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, राइट? सो मेनी थिंग्स आर देयर। उसी तरीके से प्लांट्स को भी बढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? वो लस्ट, बढ़ने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, लेकिन क्या क्या ज़रूरत है वो हम देखते हैं जो नेक्स्ट स्टैंजा में लिखा हुआ है। For light, lust for light and air and sun, I could only wait as one who watched wandering while time and the rain made a miracle from green growing pain. अब प्लांट्स को भी बढ़ने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है ना। व्हाट इज़ लाइट? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सनलाइट, जो सूर्य की किरणें होती है, जो सूर्य प्रकाश होता है, किसी भी जीव को, किसी भी लाइफ को बढ़ने के लिए बहुत बड़ा ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। हवा, प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। फूड, जैसे रूट्स जो है, ज़मीन में जो कसाव होता है, जो फर्टिलिटी होती है ज़मीन में, उसमें से वो अपने रूट्स के माध्यम से, रूट्स के थ्रू अपना फूड जो है वो एब्जॉर्ब करता है। सो ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट। रस्किन बॉन्ड आगे कहते हैं, आई कुड ओनली वेट। इस पेड़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि हम उसकी केयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप इंसान जो है उसको फूड देंगे तभी वो बढ़ेगा। नहीं, हमने पहले ही भी मैंने आपको कहा है कि नेचर का अपना एक तरीका होता है। नेचर सभी को समेटे हुए, नेचर सभी को सपोर्ट करती है। तो ये प्लांट्स भी नेचर के बलबूते पर, उसकी कैपेसिटी से वो बढ़ता है। जैसे सीजनल चेंजेस होते हैं, वो भी जिस तरीके से एडवर्स इफेक्ट देते हैं जब वो ज़्यादा या कम प्रमाण में होते हैं, लेकिन ज़रूरी है वो सीजनल चेंजेस भी होने ज़रूरी है। उससे पानी मिलता है, सूर्य की रोशनी एक्सेट्रा। ये खुद कौन देता है? वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वी कैन नॉट गिव, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ कैलिबर। ये सिर्फ किसके पास है? नेचर के पास है। और हम इंसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? वो पेड़ कैसे बढ़ रहा है, प्लांट कैसे बढ़ रहा है, उसको देख सकते हैं। मेड अ मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन। यहाँ पर रस्किन बॉन्ड क्या कहते हैं कि ग्रीन, जैसे ग्रीन शब्द बोला है, ग्रीन किसके लिए डिनोट किया हुआ है? पेड़ के लिए, पौधों के लिए। और पेन का मतलब क्या है? उसे होने वाला दर्द, उसे होने वाला जो पीड़ा है उसके बारे में। पौधों को भी, जैसे हम इंसानों को दर्द होता है, हम इंसानों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, उसी तरीके से पेड़ों को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इस संघर्ष से, इस पेन से वो उभर कर अपना मकाम हासिल करते हैं और अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं होता है। आपने देखा होगा कि बहुत तूफान होता है, ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो झुकते हैं, इतने झुकते हैं कि वो पूरी ज़मीन तक आ जाते हैं, लेकिन वो कभी भी टूटते नहीं हैं। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दे बाउंस बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन। उनमें इतनी ताकत होती है, उनकी जड़ें इतनी मजबूत होती है कि उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तो वो बाउंस बैक होते हैं अपने नॉर्मल सिचुएशन, अपने नॉर्मल फेस पर। तो ये उनको भी दुख होता है, लेकिन वापस से वो अपनी जो ऑब्सेशन है, जो उनका जुनून है जीने का, जो स्पिरिट है, उसे हासिल करते हैं और हार नहीं मानते। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टैंजा। I went away next year, spent a season in Kashmir. Came back thinner, rather poor, but richer by a cherry tree at my door. Here, in this stanza, the poet is saying that meanwhile he left for Kashmir to stay and returned in a poor condition. He became thinner and poor, but when he saw the cherry tree he planted, he considered himself rich because now it is a fully grown up one. यहाँ पर देखो, राइटर अपनी एक सीज़न छुट्टी मनाने के लिए मे बी कश्मीर चले जाते हैं, लेकिन जब वो कश्मीर से लौटते हैं तब वो थीनर हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं,
मे बी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पर पुअर बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब वो अपनी चेरी ट्री की तरफ देखते हैं जो अब एक बहुत बड़ा चेरी ट्री बन चुका था और उसको बहुत सारे बेरीज यानी फल लगे हुए थे, उसे देखने के बाद जो है राइटर कहते हैं कि मुझे ज़रा भी अपनी फाइनेंशियल वीकनेस का रियलाइजेशन नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा नहीं है, बट फ्रॉम माई साइड आई एम टेलिंग यू, हर एक चीज़ की जो हर एक चीज़ जो है हम दौलत में नहीं तोल सकते, पैसों में नहीं तोल सकते। ज़रा सोचो कि अगर हम रस्किन बॉन्ड की जगह पर हैं, हमने उस पेड़ को, उसका सीड जो है बोया है, हमने उसे बढ़ते हुए देखा है, तो वो किसी बच्चे से कम नहीं होता है। और आखिर में आप देख रहे हैं कि वो पेड़ इतना बड़ा हो चुका है कि उसको वो एक फ्रूट बेयरिंग प्लांट बना हुआ है। वो खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, वो एक सेटिस्फैक्शन होता है। अब वो सेटिस्फैक्शन क्यों है, वो हैप्पीनेस क्यों है, वो हम नेक्स्ट स्टैंजा में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर एक खुशी जो है दौलत में नहीं मापी जा सकती है, दौलत में, पैसों में नहीं तोली जा सकती है। वन मोर थिंग हियर स्टूडेंट, यहाँ पर केम बैक थिनर रेदर पुअर बट रीचर बाय चेरी ट्री एट माई डोर। यहाँ पर आपको इसके लिए एंटीथेसिस का सवाल पूछा जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच जो रेड पार्ट आप देख रहे हो, ये हमेशा फिगर ऑफ स्पीच इसका पूछा जाता है। इन लाइन का फिगर ऑफ स्पीच क्या बनेगा? एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में अपोजिट आइडियाज होते हैं, जैसे पुअर और रीचर यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टैंजा। एंड वन मोर थिंग, ऐसा भी सवाल आपको पूछा जाएगा, व्हाई डिड द पोएट फील रिचर? व्हाई डिड द पोएट फील रिचर? सो टू क्वेश्चंस आई टोल्ड यू फ्रॉम दिस स्टैंजा. Next, 6 feet high, my own dark cherry, and I could scarcely believe it a berry, ripened and jeweled in the sun, hung from a branch just one. And next year there were blossoms small, pink, fragile, quick to fall, at the merest breath, the sleepiest breeze. अब यहाँ पे राइटर देखो क्या कहना चाहते हैं, कितना बड़ा हो चुका था वो चेरी का ट्री, 6 फीट हाई। जब वो कश्मीर से लौटे तब उन्होंने देखा कि ये जो पेड़ है चेरी का वो 6 फुट लंबा हो चुका है। किस तरीके से डिस्क्राइब किया है? डार्क चेरी। हाउ ही हैज डिस्क्राइब दिस ट्री? इट इज 6 feet tall and the fruits of the tree, I mean the dark cherries, are not less than any precious jewel. जब वो, अब हो सकता है कि उस पेड़ को कुछ अध पके चेरीज हो, कुछ पके हुए चेरीज हो और कुछ कच्चे चेरीज हो। कच्चा फल होता है ना, तो ये जो चेरीज है, जो एक ही ब्रांच पे इतने सारे बंच लगे हुए हैं बेरीज के या चेरीज के, तो वो कैसे लगते हैं सूर्य की रोशनी में? बिल्कुल ज्वेल की तरह, यानी किसी हीरे जवाहरात से वो कम नहीं है। और नेक्स्ट ईयर वन मोर थिंग ही हैज ऑब्जर्व, क्या देखा उन्होंने कि ब्लॉसम लगे। ब्लॉसम मतलब क्या? जैसे छोटे फूल होते हैं, फल लगने से पहले फूल आते हैं, तो वो फूल लगे हुए थे। और वो फूल कौन सी कलर के थे? पिंक कलर के थे, फ्रेजाइल थे। उनका डिस्क्रिप्शन, ब्लॉसम का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया है? दे वेर पिंक इन कलर एंड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स वॉट? वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक। क्विक टू फॉल, इतने नाजुक कि जो अपनी सांस हम भरते हैं या फिर सांस जब हम एक्सेल करते हैं या फिर हवा का छोटा सा हल्का सा झोंका भी आता है, तो वो जो ब्लॉसम्स है वो बिल्कुल बिखर जाते हैं, उनकी फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं वो बिखर जाती हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टैंजा स्टूडेंट्स। I lay on the grass at ease, looking up through leaves at the blue blind sky, at the finches as they flew and fleeted through the dapper green. यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं? He lie on the grass and telling us that the nature is in full swing. The sight of the cherry tree is giving him an immense amount of joy, and he feels good for having planted this cherry tree because he can see the blue sky through the leaves of the cherry tree and can also see how magically the sky
blue sky turning into a sky which is full of stars, and with the help of through the branches of the cherry tree. He could also get the glimpse of sun and moon, stars, etc. The tree was not just mere a tree now. It has become home of finches. Finches का मतलब क्या होता है? Seed eating songbird. एक bird है जो बीज खाता है और एक विशिष्ट आवाज़ वो निकालता है. फिंचेस अब वहाँ पर रह रहे हैं. इंसेक्ट्स, बर्ड्स, क्रिकेट, मून मॉथ्स एक्सेट्रा, सो मेनी. मतलब ये पेड़ जो है वो अब एक घर बन चुका है और राइटर को बड़ा मज़ा आ रहा है उस आसमान को निहारने में, उस पेड़ों पर बैठे हुए पक्षियों को निहारने में. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टैंजा. While bees in an ecstasy drank of nectar from each bloom, and the sun sank swiftly, and the straw turned in the sky, and moon moths and singing cricket, and I praise night and stars and tree, that small the cherry grown by मी. राइटर यहाँ ये सबसे बड़ा खूबसूरत स्टैंजा है. मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे पोएम में ये सबसे बड़ा खूबसूरत, एक पोएम का जब हम बोलते हैं ना सारांश है, एक सार्थक है उस पोएम का, वो ये वाला स्टैंजा है. जैसे राइटर ने, कंपोज़र ने चेरी का जो सीड है वो प्लांट किया, लेकिन चेरी ट्री उसने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया, और आखिरकार वो एक फ्रूट बेरिंग ट्री में कन्वर्ट हो गया. लेकिन वो जिया, उसने सरवाइव किया, लेकिन अब वो और भी दूसरे चीज़ों के काम आ रहा है. मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ वो खुद उसने सरवाइव कर लिया, बट वो अब उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो जो पेड़ हैं वो कई पक्षियों का, कई इंसेक्ट्स का घरौंदा बन चुका है. जैसे बीज का है. बीज मतलब क्या होता है? जो मक्खियाँ होती है वो फूलों पर बैठती है. नेक्टर का मतलब क्या है? अमरूद. अमरूद नहीं, अमृत. यानी जो फूलों से जो लिक्विड निकलता है, द लिक्विड सिक्रेटेड फ्रॉम द फ्लावर्स टू एनकरेज द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. जो इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फूलों से रस निकालते हैं, वो रस वहाँ से निकालते हैं और पॉलिनेशन का काम वहाँ पर वो करते हैं. सो ये मधुमक्खियाँ जो हैं वो रस निकालने के लिए, नेक्टर निकालने के लिए उस पेड़ों पर आ रही है. फिर उसके बाद में मून मॉथ्स है, क्रिकेट्स है, कई इंसेक्ट्स हैं, कई बर्ड्स ने वहाँ पर अपना घर बना लिया है. और राइटर जब ये देखते हैं कि मैंने अगर ये इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो ये मिरेकल नहीं होता. फ्रूट्स, फ्लावर्स तो लग रहे हैं, ये पेड़ है वो छाया दे रहा है, वो ऑक्सीजन भी जनरेट करेगा, लेकिन इसके अलावा वो एक घर बन चुका है. इतना मैच्योर्ड और इतना अडल्ट बन चुका है ये पेड़ कि कई लोगों को वो अपनी पनाह में, कई जीव जंतुओं को वो अपने पनाह में ले चुका है और उनकी मदद कर रहा है. किसी का घर है तो किसी का खाना बन रहा है. So here we are done with this poem, students. The underlying message of this poem is determination, dedication to grow, and unconditional love for others. The cherry is very much determined, the cherry tree is very much determined to grow despite all odds. In the same way, we human also can overcome all the odds and adversities that we face, and can be resilient like the plants and other natural elements. अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन निकल सकता है. हु वेर द बेनिफिशरीज ऑफ चेरी ट्री? हु वेर द बेनिफिशरीज ऑफ द चेरी ट्री? So students, this was the explanation, analysis of this poem. If you like the way I explained this poem, please like my video, share it, and do subscribe my channel. See you again with a new topic. Till then, do take care of yourself. Bye bye.